Hello everybody, welcome to our channel Swift Learn. So whosoever has not subscribed our channel, just go right now and subscribe our channel and press the bell icon. And if you want to have such interactive classes again and again, so what you have to do? You have to book a free trial class with us because we are giving you one-on-one interaction with subjective test, practice test, and detailed progress reports. So what else you need? Right now, what you need to do? Subscribe our channel and press the bell icon. So be with us till the end of the video, and if you really like this video, press the like button and press the bell icon so that our contact will not be lost. So today we are going to discuss carbon and its compounds part 3. So first and the second part we have already completed. So I hope everybody has seen that, and if not, so you will get the link and you can see that. So here we are starting our carbon and its compounds. Till now we have studied so much about carbon, occurrence of carbon, allotropes of carbon. Today we are here at the last part, that is carbon dioxide cycle. यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि अभी तक तो एक बेसिक साइकिल ही सुना है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल क्या है। तो आप लोगों ने जैसे वाटर साइकिल सुना है, ऐसे ही आज आप एक नई चीज सीखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। एंड बेस्ड ऑन दैट you will understand what is greenhouse effect, why there is so much global warming, and why the global warming is such a big threat to the world. Then we will understand the occurrence of the carbon monoxide and what are the harmful effects of carbon monoxide. So let's understand our first topic, that is carbon dioxide cycle. We have already understood that carbon dioxide is there present in the atmosphere and it is comprising of 0.039%. Everybody knows that each one of us is actually taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Yes, and everybody knows that in the process of photosynthesis, plants are taking carbon dioxide. So see, at one point of time, we are giving it, and on the other point of time, plants are taking it. So there is continuous process of taking it and giving out of carbon dioxide. So that is very important, and that's the main procedure of the cycle of the carbon dioxide. So the way by which carbon is exchanged between the biotic and the abiotic components of the earth is called as carbon dioxide cycle. We all know that we have a biosphere. Everybody knows that this is a biosphere. We have atmosphere, hydrosphere and lithosphere, and together it forms this portion as biosphere. So in all these cases, how carbon dioxide is present everywhere and why like carbon dioxide is being traveled in everything. Let's understand that more in details when we will understand about the plants and the human beings. If we have plants and the human beings, so I have already explained that during the process of breathing, human beings are giving out carbon dioxide, and that carbon dioxide is released into the atmosphere, right? Not only the human beings, if we talk about the aquatic animals, they are also releasing the carbon dioxide, and that point of time, that is hydrosphere. So we have carbon dioxide present in atmosphere, in hydrosphere. Then we have plants. Plants are maintaining the ecological balance between the oxygen and the carbon dioxide by giving out oxygen and taking in carbon dioxide. But do you know one simple question, that it is advised to sit like beneath the plant in the day but not at the night? Why is it so? Everybody needs to answer me. Just stop the video and answer me that why it is not advised to sleep at night beneath a tree. You will only understand the cycle of the carbon dioxide. You will understand. And the myth that plants only take carbon dioxide and they don't take oxygen, that will also get lost. So that is a hint, and I'll tell you at the end of this video that why this
is happening. Let's understand one main thing. Right now we are main problem that is coming up, that is global warming. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, बहुत ज्यादा। अब है क्या ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट यू मीन बाय ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस नाम से ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर का एक हाउस बना हुआ है, और फोटो में ऐसा लग रहा है कुछ ग्लास का बना हुआ है। अब इस ग्लास और ग्रीन को थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज समझते हैं। We all have listen to the term that is isotherms. Isotherms, right? Isotherms क्या होता है? Isotherm कहता है कि if I have a container and that is isothermic, तो अगर मैं इसमें ठंडा रख दूं या इस कंटेनर में गर्म रख दूं, राइट, वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा, वो गर्म का गर्म ही रहेगा। Why this is happening? This is happening because ये एनर्जी को लूज नहीं करता। क्योंकि ये एनर्जी लूज नहीं करता, ट्रैप करके रखता है, तो ये वैसा का वैसा ही रहता है टेम्परेचर। अब वही चीज आप इस ग्लास वाले हाउस में देख लो, यहाँ पर एयर होगी, अगर इस यहाँ पे कोई नहीं रहता तो एयर तो होगी। वो एयर में जो भी हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, बीट हार्मफुल बीट एनीथिंग, वो उसको आगे लॉस्ट नहीं होने देगा। अगर वो नहीं होने देगा तो वो यहीं के यहीं ट्रैप होके रह गया, राइट। अब अगर कोई भी चीज यही ट्रैप होके रह गई तो उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस चीज की, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उसका कंटेंट ज्यादा बढ़ गया तो वो प्रॉब्लम होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज समथिंग दैट इज प्रिवेंटिंग द हीट टू गो आउट। वो हीट को वहीं की वहीं ट्रैप करके रख रहा है और वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। अब यही सेम प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। कैसे होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस रिलीज होती है, राइट। इस तरह से एक लेयर बन जाती है, जो यहाँ पर हम कांच का दिखाते हैं, वहां पे भी एक लेयर बन जाती है। अब वो लेयर किस चीज की बनती है? वो लेयर बनती है गैसेस की। गैसेस कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। Ozone is O3, methane is CH4 and carbon dioxide everybody knows is CO2। तो इसका ना एक लेयर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेयर को ऐसे लो कि एक लेयर बन जाए। अब जितनी भी हीट ऊपर की तरफ जा रही है, जो कॉन्स्टेंटली जाती भी रहती है, लैंड हीट हो रहा है और बॉडीज हो रही है, सब चीज का हीट ऊपर जा रहा है, पर क्योंकि ये लेयर ऊपर है, ये उसको ऊपर लॉस नहीं होने दे रही, तो ये क्या करेगी, यहीं की यहीं उसे वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी गैसेस का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। आई वुड सिंपली से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कंटेंट होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ना तो आई कैन से कि किसी को नहीं पसंद, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से तो प्रॉब्लम ही होगा, राइट। हमारा सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ऑब्वियसली वो वाटर की फॉर्म में नीचे आएंगे, और वही तो है फ्लड्स। तो क्या हो रहा है कि ये वहीं की वहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और क्योंकि ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम सन को नहीं रोक सकते हैं, सन अपनी रेस फेंकेगा ही फेंकेगा। What we can control is, हम सिंपली क्या कंट्रोल कर सकते हैं एज अ ह्यूमन और एज एन एक्टिव सिटीजन, इज लेस पोल्यूशन। क्योंकि पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, वही तो एक लेयर बना रहा है। वो नहीं होगा तो वो लेयर बनेगा ही नहीं, राइट। तो यही तो होता है हमारा, हमें यही चीजें कंट्रोल करनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, वी आर हैविंग सो मेनी एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, राइट। अब इतना सबके, इसके बिना तो किसी का घर ही नहीं चलता, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, इसमें से हमारे निकलते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसको कभी भी चला लेते हैं। अब हमें ऐसा हमारा बॉडी हो गया कि वी कांट टॉलरेट दैट हीट, हमें लगता है एसी चला लो फटाफट। तो हम गेस भी नहीं कर पाते कि हम एक पर्टिकुलर फ्लोर पर ही 3-4 एसी चलाते हैं, फिर उन्हें यूज भी करते हैं, तो CFCs रिलीज होते हैं। दैट इज समव्हाट इज इफेक्टिंग आवर environment, and for that only government is taking a lot of efforts। government भी नहीं बोलूंगी, international bodies UN
is taking a lot of efforts. वो सारे efforts कहाँ जा रहे हैं? वो सारे efforts सारी countries को बोलते जा रहे हैं कि आप अपना SDG फॉर्म करो. SDG होता है Sustainable Development Goal. Right? This is our Sustainable Development गोल. अब इस डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पास आज की डेट में वी हैव 17 गोल्स, राइट. बट हम 17 गोल्स की तो बात नहीं करेंगे. दैट इज कुछ एजुकेशन है, कुछ पॉवर्टी है, बहुत सारी चीजें हैं. एक चीज है दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशन. हमें क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखना है. सॉरी, मैंने 2 बार लिख दिया. इट्स क्लाइमेट कंडीशन. ठीक है. तो हमारा यूएन ये कहता है कि आपको 2022 तक इतना अपना मेंटेन रखना है कि आपका जो कार्बन कंटेंट रिलीज हो रहा है ना वो कम हो जाए. अब ठीक है, कुछ फैक्ट्रीज और उन पर इसीलिए बहुत सारे लाइक आई वुड से कि पेनल्टीज लगती हैं बिकॉज उनका इंडस्ट्रियल लेवल चेक होता है, उनका पोल्यूशन लेवल चेक होता है. अब तो कार्स का भी होने लग गया. तो ये सब ना उसी का एक रूल है कि हाँ आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा. उसके लिए ये सब रूल्स निकलते हैं, राइट. क्यों निकलते हैं? बिकॉज यूएन ने कैलकुलेट कर लिया है दैट इफ इन दिस वे temperature keeps on increasing, so soon there will be global warming, so soon there will be temperature increase. गवर्नमेंट ने यूएन ने ये कैलकुलेट कर लिया. उन्होंने बोला अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ वैसे तबाह हो ना हो, ऐसे जरूर तबाह हो जाएगा, राइट. तो उन्होंने ये समझा कि हमारा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और जब हमारा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यही तो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग. यही तो हमें रोकना है. और रोकना कैसे है? जिसको आजकल बहुत फेमस बोलते हैं कि कारपूलिंग कर लो. कारपूल कर सकते हो. आपको कुछ ऐसे तरीके देखने हैं जिससे आपके हार्मफुल गैसेस कम से कम हो. नाउ यू आर माय एक्टिव सिटीजन्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, राइट. अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. क्या समझ आ रहा है इससे? कि सन का हीट जा रहा है और हमें गर्मी आ रही है, अर्थ को पसीना आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये सिचुएशन हो जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं. और ग्लेशियर्स मेल्ट होना ऐसे मत समझो कि ठीक है हो गया, क्या हो गया. ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होगा ना तो वी विल हैव फ्लड्स. बहुत प्रॉब्लम होगा. कैसे? सबसे पहले तो ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमंस को, एक्वेटिक एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको प्रॉब्लम होगा. दूसरा होगा टेम्परेचर का ओशन बदल जाएगा, मतलब टेम्परेचर, ओशंस का टेम्परेचर बदल जाएगा, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी टू सर्वाइव. पेड़ भी मर जाएंगे. सीवियर वेदर कंडीशंस हो जाएंगी, कहीं रेनफॉल ज्यादा हो रही है और कहीं सूखा भी पड़ रहा है. आप देखो, एक होता है ना एक हैप्पी अर्थ कि जैसा है वैसा ही है, और ये ऐसा लग रहा है जला हुआ अर्थ. तो अच्छा लग रहा है देखने में? नहीं. तो अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे विल कीप इन माइंड, राइट. और वो जितने लोगों को गाइड कर सकते हैं आप गाइड करो. एंड आई वांट कि आप एक बार एक गाइड करके देखो, किसी को समझाओ कि आप ऐसे करो, और फिर कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि आपने करा. आपको खुद बहुत खुशी होगी कि हाँ हमने किसी को एक अच्छी चीज समझाई, राइट. आप वो चीजें समझाओ, क्योंकि अब आप खुद समझो कि कहीं आप अब बोलते हैं ना, बहुत लोग जैसे हमारी दादी और सब बोलते हैं अब बेटा सर्दी पड़ती ही कहाँ है. क्यों? बात उसका यही है कि अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. एनिमल्स की डेथ होती जा रही है, धीरे धीरे सब वल्नरेबल एनिमल्स बनते जा रहे हैं. हम उनको एक हंटिंग के लिए तो मार ही रहे हैं, पर वो जी भी नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से दे आर गोइंग हेयर एंड देयर. उनको नहीं अच्छा लग रहा. लैंड्स पे हम प्लांट्स नहीं ग्रो कर पा रहे बिकॉज ड्रॉट कंडीशंस हो जाती हैं, एग्रीकल्चरल पैटर्न बदल जाता है, कहीं कहीं फ्लड्स आ जाते हैं. हम उड़ीसा में कितना ज्यादा सुनते हैं, अभी रिसेंटली भी सुना था, राइट. हम जब ये फ्लड्स आते हैं हम सबसे सोचते हैं ओहो क्या हो गया. आपको रीजन समझना है कि ये सब क्या हो गया, और उन चीजों को आप बचा सकते हो. प्रिकॉशंस, आप उन चीजों का प्रिकॉशंस लो ना, क्योर तक तो पहुंचो ही मत.
तो आप लोगों को पता है अगर हम ये गाइड करेंगे कि हाँ ये किसी को नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपने 10 लोगों को भी समझाया और एक भी सुधर गया तो अच्छी बात है ना, इट इज अ गुड स्टार्ट, राइट? सो स्लोली एंड स्लोली वी कैन से कि हम धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो जस्ट गो, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आप किसी को भी समझाओ कि अगर आप दो जने अलग अलग कार लेके जा रहे हो, हैव द कार पूलिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो। Sometimes, because of incomplete combustion of the fuel, carbon monoxide is released, and that carbon monoxide is very harmful. It's a deadly gas. अगर it we inhale, जैसे हमें नहीं पता होता कि हम कौन सा गैस इनहेल कर रहे हैं, सो इट्स सच अ पॉइजनस गैस कि इट मिक्स विद आवर ब्लड, जैसे हमारा ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, एंड इट कॉजेज हेडेक, आपको स्लीपलेसनेस हो जाता है। एंड इफ इट्स कॉन्टिन्यूस, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे आर जनरली एडवाइज कि आप अपना कुछ पहन कर रखो, आपको ये चीजें चाहिए, वरना उन लोगों को हेल्थ इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज समवॉट अ पॉइजनस गैस। कहीं कहीं यूजेस भी हैं, जैसे इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन रिमूव करने में काम आता है, फ्यूल की तरह यूज होता है, फूड्स में भी यूज होता है ताकि हम उनको एसिडिफाई कर सके और वो स्पॉइल ना हो। बट कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जहां हमें दिख रहा है कि डेथ है, वहां हमें ऐसी कोशिश करनी है कि वो प्रोड्यूस ही ना, हमारा मेंटल फंक्शनैलिटी कम हो जाएगा, आप लोगों को चीजें कम कम याद रहेंगी, तो हमें वो चीज नहीं करना। सो चाइना राइट नाउ, जैसे सबको पता है, चाइना इज द बेस्ट एक्सपोर्टर, बहुत एक्सपोर्ट्स करता है, राइट? तो अब जितना एक्सपोर्ट्स करेगा इसका मतलब उसके वहां पर फैक्ट्रीज बहुत है, तो चाइना का कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो यूएन ने जो एसडीजी दिया था, तो उसमें चाइना को सबसे टॉप पर रखकर यही बोला था कि आपको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव टू टेक सम एक्शंस। तो यस, आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करनी पड़ती हैं, और हमारा इंडिया भी कोई बहुत दूर नहीं है, 3rd नंबर पर है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इशू है। So today, what we have learned that how carbon dioxide cycle goes on, what is greenhouse effect, why global warming is a problem, and why is carbon monoxide a issue. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि why it is not advised to sit at night beneath a tree. So what happens is, हम प्लांट्स को ये ले बोलते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, बट प्लांट्स डू टेक ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। पर डे टाइम में क्या होता है कि वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाता है। पर फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए? सनलाइट। अब रात में तो सनलाइट मिलेगा नहीं, तो जब रात में सनलाइट नहीं मिलता, तो जितना भी वो CO2 यूज करना चाहते हैं वो यूज नहीं होता, वो वहीं का वहीं रिलीज हो जाता है। तो अगर कोई भी इंसान उस पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तो वो क्या इनहेल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज अ इशू, right? So this is how the total carbon chapter goes on, and I hope everybody is able to understand it. So let's revise in a very little bit form. What do you mean by greenhouse effect? So what do you mean by greenhouse effect? Yes, it's anything that enables the heat, disables the heat to go out. So what are the effects of global warming? Floods, aquatic animals, humans, plants, they will not be able to survive. So carbon monoxide is same because it can lead to death, dizziness and sleepiness. So I hope the whole carbon chapter is clear to you. You are able to understand, and if yes, then like the video, comment also and share it as much as possible. At the end, I would again say subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much. That's all for today.